David never had a pastor. दाऊद को कोई पास्टर नहीं था, He only had enemies. उसको सिर्फ वैरिया थे, दुश्मन थे। But the Bible says लेकिन बाइबल कहता है he encouraged himself उसने अपने आप को उत्तेजन किया in the Lord. परमेश्वर में रहकर। Amen. Amen. God loves people who encourage themselves in the Lord. परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करते हैं जो अपने आप को परमेश्वर में उत्तेजन करके लेते हैं। Because you can take the horse to the water, but you cannot push the horse neck and make it drink water. आप घोड़े को एक पानी के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़े का गर्दन पकड़कर उसको पानी पियो इस तरह से आप उसको फोर्स नहीं God कर has सकते। given you a living water. परमेश्वर ने तो आपको जीवित जल दिया है। He has already given you a living water. परमेश्वर ने अभी आपको जीवित जल दे चुके हैं। He has given you the gift of tongues. परमेश्वर ने अनन्य भाषा का वो वरदान को आपको दिया है। Amen. Amen. And imagine at the time of apostles and a century ago, और आप इस समय के बारे में सोचिएगा जब अपोस्तल सभी थे, they never had guitars, they never had PA system, they never had anything to encourage them. But these days you have millions of the songs of praise and worship to encourage you are flowing. उन दिनों में ना ही गिटार था, ना ही पीए सिस्टम था उनको एनकरेज करने के लिए, लेकिन आपके लिए तो हजारों और मिलियन गाने हैं जो आपको उत्तेजन कर सकते हैं। Amen. आमेन। Put them on. आप उनको गीत को लगाइएगा, Listen to them. उनको सुनिएगा, Because most of the gospel songs are the scriptures. क्योंकि अब कई गीत जो लिखे गए हैं वह परमेश्वर के वचन हैं। Amen. आमेन। एक पत्ता भी हिलता ना हिलता तेरे बिना। एक पत्ता भी हिलता ना तेरे बिना। I feel so strengthened when I hear that. No demon can touch you, no disappointment. See, unless and until you come, बैल मुझे मार, nobody will come to touch you. No demon will come to touch you because God has made you strong. But we believers, sometimes it's like little something happens. बैल कितने बैल हैं दुनिया में, सब आ जाओ, आके मेरे को मार दो. That no. वैसा नहीं है जी। Amen. Amen. Why? क्यों? Everyone who lived their life, किसी लोगों ने भी यहाँ पर जिंदगी they बिताया lived it by the word of God. और वह परमेश्वर के वचनों के द्वारा बिताया। Don't call me, come and encourage me. मुझे मत बुलाएगा कि आकर हमें उत्तेजन It's not that I don't दीजिएगा। want to come to you. ऐसा नहीं है कि मैंने आना In नहीं doing चाहता। that, you are insulting your God. वो चीज को करते समय आप परमेश्वर का अपमान Because कर you are रहे telling हो, him, I don't want to read the Bible. क्योंकि आप उनसे कह रहे हो कि मुझे Because बाइबल नहीं पढ़ना है। When the anointing comes upon the church, जब परमेश्वर का अभिषेक मंडली के ऊपर आता है, you too begin to drink in it. Don't let people define your lifestyle. Let the word of God define your lifestyle. आपको कैसा रहना है, क्या करना है, लोगों को बताने के लिए मत बोलिएगा। वचन आपको बताता है हमें कैसा रहना है। प्रभु है बताने के लिए। Because you cannot satisfy everyone. क्योंकि आप सबको तृप्त नहीं कर सकते। Students, you can never satisfy a teacher. विद्यार्थी, आप अपने टीचर को कभी तृप्त नहीं कर सकते। Wife, you can never satisfy your husband. Husband, you can never satisfy your wife. बीवी अपने पति को या पति अपनी बीवी को कभी तृप्त नहीं कर सकते। Boss, you can never be satisfied with your workers. Don't worry. बॉस वो अपने कामगारों से कभी तृप्त नहीं होते हैं। And the worker, don't worry, you can never satisfy your boss. और कामगार लोग, आप चिंता मत कीजिए, अपने बॉस को आप कभी तृप्त नहीं कर But there सकते। is one person who is always satisfied with us, no matter how we are, because he is willing to forgive. लेकिन And the Lord Jesus Christ. और एक व्यक्ति है जो हम किसी भी तरह से रहे तो भी वह हमसे तृप्त है, और वो यीशु मसीह। Amen. I want to encourage you. मैं आपको उत्तेजन करना चाहता Don't be हूँ। under an illusion that you don't need deliverance because you are a Christian. आप इस सोच में मत रहिएगा कि आपको छुटकारा नहीं चाहिए क्योंकि आप मसीह में हो। Don't think we are already delivered. आप इस तरह से मत सोचिएगा कि हम अभी ही छुटकारा पा चुके हैं। Deliverance is a process. It is not one-time event. छुटकारा जो है वो एक ही समय पे घटने वाला चीज नहीं है, वो घटते ही रहने वाला चीज है। You understand this? इसको आप समझ रहे हो? Pastor, look at me. पास्टर जी, मुझे देखिएगा। Telling me I need deliverance? आप कह रहे हो कि मुझे छुटकारे की जरूरत है? No, brother. नहीं मेरे I भाई, love you. मैं आपसे प्यार करता हूँ। I don't need you. I don't think you need a deliverance, but all I want to tell you is somebody else need you to bring them deliverance. मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको छुटकारे की जरूरत है, लेकिन मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि किसी और के छुटकारे के लिए आपकी मैं ये नहीं कह जरूरत रहा हूँ है। कि आपको छुटकारा चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके द्वारा किसी और को छुटकारा मांगता है। Pastor, what do you mean?
पास्टर उसका मतलब क्या है? You know, we are so content people. आपको पता है कि हम कितने तृप्त हैं. तृप्त लोग हैं. We never think about others. हम दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचते. But the true deliverance, the sign of a true deliverance is that you begin to think about others. That means you are delivered. सच्चे Otherwise, छुटकारे का you are मतलब not delivered from your selfishness. You are not delivered from your self-centeredness. You are still in the bondage. So you think only about your rice and dal. You are not worried about your neighbor's plate. You know why? Because you are not delivered. Because a delivered person will love his neighbor. A delivered person, the sign of your deliverance is you will obey the master, considering and looking for the welfare of others. छुटकारे का एक बहुत बड़ा चिन्ह हमारे जिंदगी में, हर मसीह की जिंदगी में, कि हम अगर छुटकारा पाए हैं तो उसका चिन्ह ये रहेगा कि हम दूसरों के छुटकारे के बारे में, दूसरों की भलाई के बारे में परिश्रम करने वाले बन जाएंगे. इसका मतलब है कि हमको छुटकारा हुआ है. अगर छुटकारा नहीं हुआ है तो दूसरों की बुराई में, दूसरों की गिरने में हमको आनंद मिलता है या तसल्ली मिल जाए. यानी कि शैतान हमें वे अभी भी जकड़ के रखा है. You're with me? क्या आप हमारे साथ हो? Amen. Amen. So if you think you don't need deliverance, congratulations. But all I'm trying to tell you is only a delivered cup will overflow to fill another cup. मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आप अगर सोचते हो कि आप छुटकारा पा चुके हो तो यह ठीक है, लेकिन वो छुटकारा पाया हुआ पात्र ही और खाली पात्र को भर सकता है. मैं सिर्फ दो लोगों को आपको दिखाऊंगा. Under bondage. एक जो बंधन में है, not under bondage, और एक जो बंधन में नहीं है. Is that okay? वो ठीक है. Amen. Amen. Jesus, यीशु मसीह, not under bondage. जो बंधन में नहीं है. Amen. Amen. But when he went to Gerasene's region, लेकिन जब वो गेरासेन शहर को गए, there was one man. वहाँ पर एक व्यक्ति था. He was possessed. उसको दुष्टात्मा की तकलीफ थी. He was पकड़ा था. दुष्टात्मा पकड़ा था. And when the number one, पहली चीज, he was demon possessed. उसको दुष्टात्मा पकड़ा था. The sign of bondage. वह जो बंधन में रहने वाला का चिन्ह. Number one. पहली चीज, The sign of bondage. जो बंधन में रहने का चिन्ह है. Where he was living? वो कहाँ जी रहा था? He was not living in the city. वह शहर में नहीं जी रहा He was था. not associating with people. वह सारे लोगों के साथ मिलजुल He नहीं was रहा not था. talking with people. वो लोगों के साथ बात नहीं कर He रहा was था. not eating with people. लोगों के साथ खा पी नहीं रहा था. He separated from the people and he lived in the tomb. वह लोगों के पास से अपने आप को अलग कर कर एक गुफा में रह रहा था. The sign of the bondage is that you don't love people. It's the sign of you under bondage. Sign of one under bondage is they don't want people. They love the tomb. Tomb is loneliness. Tomb is death. बंधन का यह चिन्ह यह है कि वह लोगों को नहीं चाहते हैं. वह एक गुफा में रहना चाहते हैं. वह अकेले में रहना चाहते हैं. Many people think, you know, once they reach a level in spiritual life, they think, I don't want to talk to somebody, I lose the anointing. No, you are not losing the anointing. You are not only losing the anointing, you are losing your freedom. आप कई बार ऐसा हो Because a जाता है. demon possessed person separates himself because the demon inside him doesn't allow him to love his neighbor. The demon inside him will never allow him to associate with his neighbor. The demon inside him will want to kill him. That's why you will become alone and you'll have a thoughts that will destroy you. It is a deliverance case. जब दुष्टात्मा किसी को जकड़ लेता है तो वो लोगों के साथ मिलने के लिए नहीं छोड़ता. इतना दर्द देने लगता है कि लोगों से दूर लेके जाते हैं. क्यों? मसीह का आत्मा वैरियों को माफ करना सिखाता है. दुष्टात्मा दर्द को मन में रख के वैरी से दूर जाना सिखाता है. People think holy if they separate themselves. You are not holy. लोग इस तरह से You समझते हैं need कि deliverance. आपको छुटकारे की जरूरत है. Jesus went in the wilderness only to pray. यीशु मसीह जंगल में गए लेकिन सिर्फ प्रार्थना करने के Rest लिए. all of the time he was with people. और उसके बाद हर समय वह लोगों के साथ थे. सोने के लिए भी बेडरूम में नहीं गया. बोट में ही सो गया. If you are the head of the family, अगर आप परिवार के मुख्य हो and if you are not delivered, और आप अगर छुटकारे में नहीं जी रहे you हो, will always bring pain to your family. आप हमेशा अपने परिवार को दुख में रखेंगे.
You know why? आपको पता है क्यों? Because you go home and speak only hurting words. क्योंकि आप घर जाके सिर्फ दुख The problem is not with your wife or your husband or your children. The problem is with you. You need deliverance. आपके वो जो समस्या है वो आपके साथ नहीं। Because you are angry with your incapability, you are taking that anger upon your family. क्योंकि आप अपने अक्षमता के वजह से अपने से गुस्से हैं। उनकी तरह मुझे कमाई करने के लिए नहीं हो रहा है, उनकी तरह मुझे ऊपर आने के लिए नहीं हो रहा है, आप अपने से गुस्से हैं। लेकिन गुस्से का कॉफी को किसी के और के ऊपर, मैं भी वैसे था, ज्योति को बहुत तंग किया मैंने, लेकिन जब अक्ल आया, ज्योति को मालूम भी नहीं पड़ता है कि मैं कौन सा दोहरे से गुजर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि हमारे परिवार के लोग हमारे पंचिंग बैग नहीं है कि जब भी गुस्सा आया एक दे दो, ठा नहीं है। Amen. You are with me? You see, because he was demon possessed, he went out away from the people. Don't go away from the people. That is not the remedy. You are with me? Number 2, a demon person possessed, he began to beat himself until he wounded and bleed. वो खुद के इतना मारता था वो गुफा में बैठ के कि उसको लहू आता था। जिनको छुटकारा नहीं हुआ है वो अपने आप को इतना दर्द देते हैं कि अगर आप उनको आत्मा में देखेंगे तो सब जगह पे उनको सिर्फ लहू लहान रहते हैं। उनको छुओ भी तो दर्द ही, उनको हलो भी बोलो तो इसने मुझे हलो बोला, दर्द ही। You know why? Because demon separates you and then it starts killing you here and here. दुष्टात्मा पहले आपको लोगों से दूर करता है और उसके बाद आपको अपने दिल में और मन में उनको शैतान की तरह दिखाकर, ये लोग तुझे प्यार नहीं करते हैं, ये लोग तुझे नहीं चाहते, बोल बोल कर, यहां पे खोपड़ी में बोल बोल कर आपको इतना दर्द देता है कि हम अपने आप को दर्द देना चालू कर देते हैं। तब ऐसे डायलॉग्स निकलने लगते हैं, वो आपको बहुत प्यार करता है, मैं उसके लिए शैतान हूं। नहीं भैया, आपको डिलीवरेंस चाहिए। You need deliverance. आप मेरे साथ हो? Believe me, I was so wounded in my life before. मैं अपनी जिंदगी में पहले इतना घाव से भरा था। Even when I used to take bath, my mind used to be somewhere else. I used to forget. So much thinking. They said this, they said that, they said wounded. Why can't we think about the love of Jesus? यीशु मसीह के प्यार के बारे में हम क्यों सोचना नहीं चाहते? अभी तक आपका एक एक्सीडेंट नहीं हुआ तो भी ऐसा हुआ कि आप मरे नहीं हैं। सब भले चीजों को हम डालते हैं खसड़े के डब्बे में, एक घटना को लेके पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं क्योंकि हमने शैतान को दरवाजा खोल दिया यहां पे। और ग्रेटेस्ट एनिमी इज नॉट द डेविल, your greatest enemy is your intention to open the window to the devil. That is our intention. हमारा दुश्मन शैतान नहीं है, लेकिन उस शैतान को दरवाजा खोलने का एक मन हमारे अंदर है ना, वो मन हमारा दुश्मन है। You can make a choice how you think. आप कैसे सोचते हो उसका आप चॉइस कर सकते हैं। God has given a capacity to the human brain to divert thoughts. परमेश्वर ने मनुष्य का बुद्धि को, सोचों को बदलने का क्षमता दिया है। पास्टर मुझसे नहीं होता है। हां, सही, अगर आप खुद से नहीं हो पा रहा है तो सही सुनो, सही आराधना का गाना सुनने लगो, एक 10 मिनट में आपका सोच बदलने लगता है। हम नहीं, निराशा होते हैं तो वापस विश्वास से नीचे पीछे जाके कौन हो वो गाने सुनने लगते हैं जिससे और थोड़ा रोना आता है। गोली मारो। यहां का राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इतना सुंदर गाना गाया है अपने बाइबल में। वो कहता है कि भले ही तेरे माँ बाप भी तुझे छोड़ दें, ये कोई नहीं गाता है। इसलिए हमारा सोच उस तरफ चलता रहता है। Number 1, the demon separated him from the people. Number 2, it began to wound him. अपने आप को इतना तंग करने लगा कि उसको लहू आने लगा। ये 2 चीजें विश्वासियों के साथ होते हैं जब हमारा छुटकारा नहीं होता है। आमेन, आमेन।
अगर कहीं भी आपको इसमें थोड़ा भी सच लगता है तो बदलना चालू कर दो, बिकॉज गॉड इज द गॉड ऑफ डिलीवरेंस, क्योंकि प्रभु छुटकारे का प्रभु है। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं, पास्टर आई प्रे इन टंग्स बट स्टिल यू आर प्रेइंग इन टंग्स बट योर माइंड इज स्टिल ओल्ड, यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर माइंड टू थिंक बेटर। हम लोग खोरा बरा शानदार लगा, उसने वो क्या किया, तो पिछले हफ्ते कितना बुरी तरह से मुझे मारा, कितने बुरी तरह से मुझको बोला, है टंग्स दिमाग गुफा। तो टंग्स में प्रेयर करते जा रहे हैं लेकिन दिमाग और ज्यादा घाव से बढ़ता जा रहा है, बिकॉज व्हाट यू आर मेडिटेटिंग व्हेन यू आर स्पीकिंग इन टंग्स इज वुंड। क्योंकि जो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए ध्यान कर रहे हैं वो तो घायल कर रहा है ना। क्यों ना हम ऐसे सोचते हैं, टंग्स में बात करते हैं, खो रला शांत, आज क्यों ना मेरे पास 10 रुपए हो, रमा शांत आला प्रभु, मैं जानता हूं कि तेरा वचन कह रहा है कि कल मेरा सवेरा का सुबह का सूरज नया आने वाला है। दिल्ली नहीं करता है, क्यों विश्वास नहीं करता चाहते हैं? करके तो देखो, ट्राई इट एंड सी। उन भाइयों के अगर मैं गवाही दूं, जैसे कि गोपाल भाई हैं, जैसे कि विजय है अभी मेरे साथ, अभी अमित भाई बढ़ रहे हैं, जिन भाइयों को मैंने अब पहले से और अब से मेरे साथ हम बड़े हैं, अगर आप देखेंगे कोई भी इस मंडली में कार से ही एंट्री नहीं मारा है, फिर सिवाय सम ट्रांसफर, जैसे हमारा भाई आर्मी में ट्रांसफर होके आए हैं, गोपाल भाई स्कूटर से ही चालू किया, मैंने बस के ऊपर साइकिल से ही चालू किया। पहली बार रवि अण्णा को मिला, मनोहर अण्णा को मिला, वहीं से चालू हुआ है। कोई एक मुझे ये दिखा दो यहां पर कि आप यीशु मसीह को जानने के बाद आपकी घटाई हुई है लेकिन बढ़ोतरी नहीं हुई है। फिर भी हमने हमारे सोच में हम उसको याद नहीं करना चाहते हैं। अगर प्रभु यहां तक उठा है तो क्या आगे नहीं उठाएगा? क्या प्रभु यहां तक चला है तो आगे नहीं चलाएगा? क्या अगर प्रभु यहां तक हमें उठा के, इफ द लॉर्ड हैज लिफ्टेड अस सो मच, इफ वी बिलीव, हमारे स्ट्रगल्स में भी थोड़ा विश्वास करने से यहां तक चलाया है, पूरा विश्वास करने से कब अब और कहां तक चलाएगा? नंबर 3, it will say no to the divine. A person under a bondage will say no to the divine. What does it mean? When Jesus came, he began to scream, "Get out from me!" Amen. तीसरी बात, जो अगर हमारे मन, हमारे सोच, हमारे जिंदगी शैतान के जकड़ में है, तो परमेश्वर की चीजों को हम दूर करते हैं। यीशु मसीह से वो कहने लगा, तू दूर हो जा, और भूत कहने लगा, क्या हमारे वक्त से पहले हमको तकलीफ देने के लिए तू आ गया? Did you come to torment us before our time? That means the demons have a time on earth. इसका मतलब है कि दुष्टात्मा को पृथ्वी पर समय है। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि बेलगांव में कौन सा होटल का बिरयानी आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या बोलोगे? गलत नंबर कहां है? आप क्या बोलेंगे? आप कोई एक तो बोलो यार। Sure? Guarantee? Why? Because not only tasty, it is hygienic. If you don't feel like going to prayer, you need deliverance. अगर आपको प्रार्थना में जाने जैसा नहीं लगता है तो you don't feel like praying, you need deliverance. अगर आपको प्रार्थना नहीं करना इस तरह से लगता है तो आपको छुटकारे की जरूरत है। People that speak against the men of God need deliverance. पर जो लोग परमेश्वर के दासों के खिलाफ बात करते हैं उनको you know why they speak against the pastors? आपको पता है पास्टर के खिलाफ क्यों बात करते हैं वो लोग? Because the demon will push away the divine. क्योंकि वह जो दुष्टात्मा है वो पवित्रता को दूर भगाता है। Amen. Amen. Are you here with me? क्या आप हमारे साथ हो? Understand this. इसको समझिएगा। Some people even cannot smile. थोड़े लोगों मुस्कुरा भी नहीं सकते। I want to ask you, who created the smile? मैं पूछना चाहता हूँ कि उस मुस्कुराहट को किसने जन्म दिया? Devil? दुष्टात्मा? No. नहीं। And if the God created the smile, who stole your smile? There's one person is called as a thief, and that is the devil. And if you think he steals your only health and money, he steals your smile because he knows the power of the healing of that smile. If that smile can heal somebody in your family, that smile can heal somebody who is your neighbor. शैतान जानता है कि आपका मुस्कुराहट में कितना चंगाई लाने का ताकत है, तो शैतान आपको पैसे के छूने से पहले आपका मुस्कुराहट को ही चुरा लेता है।
You know why it happens? आपको पता है वो क्यों होता है? Because we have lost our smile. क्योंकि आपके मुस्कुराहट को आपने खो दिया है। Beautiful free gift of God. परमेश्वर का मुफ्त में मिलने वाला वह एक वरदान है। Amen. Amen. He went away from people. वह लोगों के साथ दूर गया। He began to hurt himself. अपने आप को घाव देने लगा। And he began to say, "Get away, divine Jesus, get away." यीशु आप जो पवित्र है मुझसे दूर चला जा। Hallelujah. हालेलुया। Is it helping you? ये आपको मदद कर रहा If है। any one of this thing is happening to you, tell yourself, "I need a deliverance. I'm not going to listen to this anymore. I'm going to go to the prayer. I'll be regular to the church. I'll go to the youth meeting, and I know that God is going to set me free. And very soon the Bible study is going to start. I'm going to go to the Bible study. Just pray." How many of you are with me? कितने लोग हमारे साथ हैं? Hallelujah. हालेलुया करेंगे। Pastor जी, still I cannot believe अभी भी मैं विश्वास नहीं कर सकता that demon can influence me. कि दुष्टात्मा मुझे इन्फ्लुएंस कर सकता है। Are you with me? क्या आप हमारे साथ हो? Yes, you are right. वो ठीक है। Judas also was thinking the same way till the end. यहूदा भी उस तरह से ही आखिरी तक उस तरह से ही सोच रहा था। And he did not even realize when he was influenced. और उसको यह कभी उसने सोचा भी नहीं कि वो कब गलत रास्ते पे चल गया। Amen. Amen. You'll still say, "Pastor, that is Old Testament because Jesus was not yet dead at that time." आप फिर कहेंगे कि यीशु मसीह तब तक मरे हुए नहीं थे कि इसलिए वो पुराना you are करार है। right. आप ठीक है। You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? There was a sorcerer by name Simon who got saved. वहां पर एक काला जादू सिमियन नाम का एक काला जादू करने वाला था, उसने तारण पा लिया। And he saw Peter laying hands on the people, and the people will fall down in the anointing of the Holy Spirit and they speak in tongues. You know what did he do? He took the money and went to Peter. Peter, this is beautiful. Sell this to me. And you know what did Peter answer? Satan, let your money die with you. Born again believer, baptized, विश्वास पाया हुआ विश्वासी, बपतिस्मा लिया हुआ है, अभी मंडली को ज्वाइन किया है, लेकिन क्या कह रहा है? पैसा दे के मुझे अनॉइंटिंग दो बोल रहा है। तो पेतरुस ने उसके चरित्र को नहीं चिल्लाया, चरित्र के ऊपर नहीं चिल्लाया। He did not say you have bad character. उसने सीधा शैतान के ऊपर चिल्लाया। Why? Because bad character is not man's, it is the devil's. क्योंकि जो गलत चरित्र No है, man has a bad character. कोई भी लोग के पास गलत चरित्र नहीं रहता है। शैतान का गलत चरित्र है, लेकिन जब हम शैतान के धोखे में आ जाते हैं तो वो अपना चरित्र हमारे अंदर गुस्सा देता है। सोचो, झगड़ा करना आदमी का स्वभाव नहीं है, शैतान का है, लेकिन जब वो उसको हमारे अंदर डाल देता है तो आदमी झगड़ा करने लगता है। We need deliverance. हमें छुटकारा चाहिए। कितने लोग खुश हैं? आप समझ रहे हैं? आमेन। लेकिन एक दुष्टात्मा उससे भी चालाक था। There was one demon clever than him. एक दुष्टात्मा उससे भी चालाक था। और मालूम है, ये दुष्टात्मा मंडली जाता था। और यह दुष्टात्मा मंडली भी जाता था। He was going even to the church. वो मंडली भी जाता था। One day, एक दिन Jesus came into that synagogue. यीशु मसीहा उस मंदिर में आते हैं। सभा मंदिर में आया। सभा मंदिर में आते हैं। Amen. Amen. And when he came in that church, और वहाँ मंदिर में जब आते हैं, जब वो सभा मंदिर में आया, जब वो सभा मंदिर में आते हैं, देखो, beautiful part of it, हाँ? Listen. किसी को भी मालूम नहीं हुआ वहां बैठे हुए में कि परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उस दुष्टात्मा को मालूम हो गया है कि परमेश्वर का पुत्र है। Nobody. सभा मंदिर का नायक है, pastor is there, leader is there, people are worshipping. Nobody recognized Jesus as the son of the living God, but the demon recognized Jesus as the son of the living God. इतना दिन धोखा दे के चर्च में आराम से बैठा हुआ, उस दिन बैठ नहीं पाया, उठ खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे हम जानते हैं कि तुम कौन हो, you are the son of the living God. Have you come to destroy us before our time? क्या हमारे वक्त भरने से पहले हमको नाश करने के लिए आ गए आप? कहां है? चर्च में है। आमेन। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सुनिए, जब अनॉइंटिंग आता है, अगर आप पहचान नहीं पा रहे हो तो हम उन लोगों से बेहतर नहीं है जो यीशु मसीह उनके मंदिर में आने के बावजूद भी उसको समझ नहीं पाए। But you know the demon recognized,
दुष्टात्मा पहचान गए। मालूम है दुष्टात्मा आपको लोगों से क्यों अलग कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि अगर आपको छोड़ दें तो परमेश्वर आपको कितना इस्तेमाल कर सकता है। He knows if he lets you go, how much Jesus is able to use you. इसलिए जकड़ के रखता है। Why? Even if I just tell her, why are you looking so dull? God loves you, I'll pray for you. You know what happens? The devil will have to get out of her mind because he was depressing her, and one smile of a saint, one statement of a believer drives that demon out of her mind. That's why devil doesn't want to leave you, because you will become the deliverer, not Jesus. Okay, you'll never become Jesus. What I mean by deliverer, he is the source and God will make you a resource. वही मूल है, उस मूल से सी वो द्राक्षा रस है, तू कटोरा तो है। That's what I meant. You are the vessel and he is the wine. Empty vessel, no value. Full vessel, full value. Hallelujah. Don't chase people away. Chase the demon away that is making you away from the people. Amen. Amen. 1 John chapter 2 verse 16. क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ भी संसार में है, अर्थात शरीर की अर्थात शरीर की अभिलाषा। रुकिए, क्या बोलता है? शरीर की, सुनिए सुनिए सुनिए, शरीर की, इसको तो आपको सीखना ही है। सुनिए, शरीर की लालसा, ठीक है ना? अब सुनिए, पास्टर मैं विश्वास नहीं करता हूं कि शैतान को मैं चाहिए। नहीं, अगर तेरा शरीर है तो शैतान को अपने अभिलाषा के लिए तेरा शरीर चाहिए। समझ नहीं रहे? तेरे को गुस्सा क्यों आता है? वो तेरा गुस्सा नहीं है, क्योंकि तेरा शरीर है तो गुस्से का आत्मा तेरा शरीर को इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? वो दुनिया का राजा है ना, शरीर का लालसा उसको है और आत्मा को शरीर नहीं है। तो शरीर का चीजों को उसको एंजॉय करना है तो उसको एक शरीर चाहिए ना, तो वो शरीर तो हमारे पास है। अरे जब तू पाप के लिए तेरा शरीर देता है ना, दुनिया में सबसे, ये शब्द इस्तेमाल करने की मुझे माफ कीजिएगा, दुनिया में सबसे हल्का आदमी, सबसे बुरा आदमी, शैतान को हम अपना शरीर को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, जिसको परमेश्वर ने अपने उपस्थिति का मंदिर बुलाया है। पाप के बारे में ना इतना थू होना चाहिए ये समझने के बाद। इसलिए वो दुष्टात्मा देखो क्या पूछा यीशु मसीह से, प्रभु अगर तू हमें इससे निकालता है तो उन सुअरों में, यानी कि शैतान को सुअर जैसा घटिया शरीर भी मिल गया तो वो जाने के लिए तैयार है, तो अगर मैं अपना शरीर उसको दे देगा। अंडरस्टैंडिंग? गुटखा, तंबाकू, शराब, सेक्सुअल इमोरलिटी, आर यू विथ मी? जो आदमी में है, जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, वो दुष्टात्मा सुअर में भी जाने के लिए तैयार है, तो उसका क्या बोलते हैं, स्टेटस क्या रहेगा, उसका औकात क्या रहेगा? अब समझ पा रहे हैं? यानी कि लोगों से दूर करता है, अपने आप को तंग करने में मजबूर करता है, यहां तंग कर करके। आमीन। और जब अभिषेक आता है तो नहीं चाहिए बोलता है, और अब क्या कर रहा है? पाप के लिए लालसाता है, डिलीवरेंस चाहिए, पाप के लिए लालसाता है। इसलिए क्या बोलता है? शरीर की, इस दुनिया में क्या है? शरीर की अभिलाषा। बंदर ने आज तक चाइनीज फूड तैयार नहीं किया, इसलिए जब वो उसको सृष्टि किया गया था तो उसका उम्र जितना था आज तक उतना ही उम्र जी रहा है। समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ यू नो द लाइफ ऑफ अ रैट? एक चूहे का जिंदगी कितना होता है किसको मालूम है? चूहा मालूम है ना? यू नो द रैट, राइट? एनीबडी नोज व्हाट इज द लाइफ ऑफ रैट? एनीबडी?
एनीबॉडी? पास्टर ये सब हमको क्या मालूम, रैट मिल गया तो मारो, उसका लाइफ खत्म हो गया, उतना ही लाइफ। अभी उसका लाइफ लेके मैं क्या कर? सी, द रैट लिव्स ओनली 2 years and it is living 2 years. One rat lives only 2 years and it is living 2 years last 1 million year. पिछले 1 मिलियन साल से चूहा जो है 2 साल जीता है और हर चूहा 2 साल जीते आ रहा है। लेकिन मालूम है मनुष्य को क्या हो गया? हम चालू किए थे हमारा सफर 900 साल का जिंदगी से, बाद में आया 700 जिंदगी में, बाद में आया 500 जिंदगी में। क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि उन्होंने, सृष्टिकर्ता ने जैसे उनको बनाया था, आदम के शाप में तो आ गए, लेकिन अपने आप सृष्टिकर्ता के साथ जो बनाया था वही खाते खाते जा रहे हैं। लेकिन हमारे शरीर की अभिलाषा इतना बढ़ गया है, सांप को भी खा रहे हैं, बिच्छू को भी खा रहा है आदमी, और उसको टीवी पे दिखा के, व्हाट्सएप पे डाल के ऐसा दिखाता है कि जैसे कि बहुत बड़ा तीर मार लिया। मैं थाईलैंड जाके बिच्छू खा रहा हूं, wow, come on now, you're understanding what is in the world is the lust of the flesh. दुनिया में क्या है? शरीर की लालसा। और आपका नहीं है वो लालसा आपको नहीं है, शैतान को है। लेकिन वो लालसा पूरा करने के लिए उसको आपका शरीर चाहिए। अगर आप शरीर दे देते हैं तो आपके शरीर में वो अपना काम पूरा कर लेता है, और शाप हमारे जिंदगी, उसको तो आ ही गया है, हमारे ऊपर भी शाप आ जाता है। अपने शरीर को शैतान के लिए बाड़े पे मत देना। Tell your neighbor, don't give your body, shake their hands and say your body is the temple of the Holy Spirit. कितना भी भाड़ा रहने दो। यीशु मसीह को उसने कहा, अगर तूने तेरा शरीर से मुझे, मेरा पांव को छू लिया ना, if you bow down to me, मालूम है तू स्पेशल केस है मेरा, तेरे को इतना बाड़ा देगा ना, सृष्टि से आज तक किसी को भी उतना बाड़ा नहीं दिया है। क्या? पूरा दुनिया में आपको दे देगा। He will increase the rent for your body. The more tough you will become, girls, boys, listen, girls and boys, listen. The more you become strict with your body for Jesus, He will send all the more handsome guys, He will send all the more beautiful girls. क्योंकि बाड़ा बढ़ाता जाएगा वो, क्योंकि उसको मालूम है कि एक ना एक दिन तू गिरेगी। वो बाड़ा इतना बड़ा आएगा ना, तो सोचेगा, तू सोचेगा कि तू इतना लक्की है कि इतने आ रहे हैं। तू लक्की नहीं है, इतना बदतर है तेरा हालत कि शैतान कैसे भी करके तुझे खरीदना चाहता है। और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, बूढ़ों को कोई भी नहीं देखता है, सब एडवर्टाइजमेंट पे सिर्फ जवान लड़कियां। क्या है? आंखों का। क्यों? शैतान को सिर्फ पाप देखना है और उसको तेरे आंख चाहिए। डेविल वांट्स टू सी ओनली लस्टफुल थिंग्स एंड ही नीड्स योर आईज। पास्टर ऐसा कैसे हो सकता है? एक सीक्रेट बताऊं आपको। जब परमेश्वर ने सबको एक एक शाप दे दिया एदेन के बागान में, He cursed everybody one curse, लेकिन शैतान को उसने स्पेशल कर्स दिया। मालूम है उसने क्या कर्स दिया, क्या श्राप दिया? You will go on your belly and you'll eat mud. He said you'll go on your belly and you'll eat mud. Except one snake in the biology, nothing else eat the mud. None of the snakes eat the mud. They eat the frogs, they eat the rats, they eat hens. But why did God say you'll eat mud? Because God was not cursing snake, Baba. He was cursing the demon inside, that is Satan. Right? What does it mean, Pastor? I'll tell you. What did God told Adam? He told Adam, not Atom, okay? He told Adam, you are a dust. You are a dust. I not write this revelation anywhere. You go in the presence of God, God will give you such revelations. He said, you are a dust and you will go to dust. To the Satan you said, you will eat the dust. तेरा शरीर उसका खाना है। Because शरीर मिट्टी है, परमेश्वर के अनुसार वो मिट्टी में जाएगा। और शैतान को परमेश्वर कह रहा है कि तेरा खाना ही मिट्टी है। मिट्टी शरीर है
और शरीर उसका खाना है, इसलिए तुझे पाप के लिए इतना उकसाता है कि तू एक पाप करेगा, बोले उसको खाना मिलता है। शैतान का खाना तेरे हाथ में है, देगा या नहीं देगा तू तय कर ले। देगा तो बार बार तेरे पास ही आता रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इस होटल में अच्छा खाना मिलता है। एंड दैट्स व्हेन वी गेट इनटू हैबिचुअल सिंस। तभी हम आदत के पापों में डूब जाते हैं। पास्टर ये आदत से छुटकारा नहीं हो रहा है। हाँ नहीं होएगा, क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि इस कैंटीन में बजाज अच्छा मिलता है, उस कैंटीन में डोसा अच्छा मिलता है, और एक कैंटीन में बिरयानी अच्छा मिलता है। यहां पे आंखों का लालसा के लिए हमेशा गलत चीजें देखता रहता है। जब शैतान को गलत देखना है तो इसमें अंदर आ जाता है, और अच्छा बैठा खासा आदमी फट के मोबाइल ओपन करके गलत देखने लग जाता है। क्यों? दुष्टात्मा अंदर आ गया। और जैसे वो छोड़ के निकलता है, अयो व्हाट आई डिड, आई डिसाइडेड नॉट टू डू। यस, व्हाई? बिकॉज ही केम इनसाइड। वी नीड डिलीवरेंस, क्योंकि वो अंदर घुस गया। आशीष हो रहा है, फाइट इट। मालूम है इसीलिए इसका मतलब क्या अपोस्तल पौल क्यों कहा मालूम है? मैं अपने शरीर को पीट कर आत्मा के कब्जे में लाता हूं, ताकि क्यों? ताकि ये शैतान का चीज ना बने। शरीर को मारना पड़ता है। पुट इट इन सच अ प्लेस, इवन व्हेन यू डिजायर इट शुड नॉट बी अवेलेबल। 3 महीना करके देखो, वो लालसा मर जाता है, वापस नहीं आएगा। इफ यू डू इट 3 months, I'll tell you that desire of the flesh will never come back again. It will be crucified. Number 3, quickly. और जीविका का घमंड। जीविका का घमंड। जीविका का घमंड। उसने पल्सर 250 लिया, मैं पल्सर 500 नहीं है तो भी बजाज को बोल के तैयार करने के लिए बोल के लेके ही दिखाऊंगा। जीविता का लालसा। वो पास्टर आईपैड लिया, हाँ मैं भी आईपैड लूंगा, क्यों ना वो करना पड़े, लेगा ही लेगा। यू नो कन्नड़ में बहुत सुंदर लिखा है, बदकू बालिना डंबा ना। व्हाई? डेविल वांट्स इट एंड ही नीड्स अ बॉडी। उसको एक शरीर चाहिए, वो तेरा नहीं है। आप हमारे अंदर वो आशा आता है ना, उसको है मेरा है, वो आपका नहीं है। एक्चुअली हमारा शरीर किसी को हमने दे दिया, हमारे मन को किसी को हमने दे दिया, क्योंकि उसको चाहिए। क्यों? उसने बोला जिस तरह ये महान परमेश्वर ऊंचे पे बैठा है, मैं भी वहां पहुंचूंगा। ये शाय में लिखा है। ये किसका लालसा है? आपका नहीं है, आदमी का नहीं है, ये शैतान का लालसा है। उसने लालसा किया परमेश्वर की सिंहासन पर बैठने का, और उसको बाहर फेंक दिया गया। अब उसको शरीर चाहिए वही चीजों को बार बार लालसा करने के लिए। इसलिए बार बार, यह आपकी लालसा नहीं है, दिस नॉट योर डिजायर, योर बॉडी इज ऑन रेंट। सुनो, सुनना ही है तो पवित्र आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वो हमेशा आपको बचाता है। When you want to hear the voice of the Holy Spirit, because He always saves you. Just ask the Lord, Lord, this body today onwards and this mind, it is not for discouragement, it is not for disappointment, it is not for hate, it is not for grumbling and complaining. This is the temple of the Holy Spirit. मैं आपसे कह रहा था कि पास्टर सुनिए एक मिनट, लास्ट सेंटेंस सुन लीजिए। पास्टर पॉल ने जो बोला मेरा दिल में अटक गया। मैं कह रहा था, I was telling you what Pastor Paul said stuck into my heart. You know what he said? He said on the stage, Lord, use me before I become useless. रो रहा था। He said, प्रभु मैं बेइस्तेमाल का होने से पहले ही मुझे इस्तेमाल कर। You know why? Because one day your knees will be of useless. Your eyes will not be able to read the Bible. They'll be useless. You cannot walk around. Now, young people, now your body is the temple of the Holy Spirit. चश्मा लगने से पहले, हाथ में वॉकिंग स्टिक आने से पहले, Lord, use me before I become useless for you. प्रभु तेरे लिए बेइस्तेमाल का चीज मैं बनकर बिस्तर पे गिरने से पहले ही मुझे इस्तेमाल कर।
वो एक ही हमारा क्राई होना चाहिए। लॉर्ड वो ये पूरा कॉन्फ्रेंस में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, वो एक लाइन मेरे दिल में बैठ गया, लॉर्ड यूज मी बिफोर दिस बॉडी बिकम्स। हम जिंदगी भर इस शरीर को शैतान को बाड़ा देके जिंदगी के आखिर में प्रभु मुझे स्वर्ग ले लो करके एक पत्थर जिंदगी जीने के बजाय अब जब इस शरीर में ताकत है तो इसको यीशु मसीह को देखकर कहते हैं कि प्रभु ये शरीर नाश होने से पहले तू मुझे इस्तेमाल कर।